এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ইতিমধ্যে আহি গ'ল নতুন আইন আৰু এতিয়াৰ পৰা হলনি হ'ব নিয়ম ইতিমধ্যে উত্তৰাখণ্ডত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইউসিসি বলবৎ হৈছে আৰু ইউসিসি বলবৎ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া হলনি হ'ব কেইবাটাও নিয়ম আপুনি নিজ ইচ্ছামতে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই যিকোনো কাম কৰিব নোৱাৰিব বাধ্যবাধকতা থাকিব কি নিয়ম হলনি হ'ব আমি সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম ইউসিসি অহাৰ পিছত কেনেদৰে এতিয়া হলনি হ'ব উত্তৰাখণ্ডত বলবৎ হ'ল ইউসিসি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বলবৎ হৈছে ইউসিসি বলবৎ কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্য হ'ল দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য উত্তৰাখণ্ড নাচে গানে ঢুলে ডগৰে বিজেপি কৰ্মীয়ে স্বাগতম জনালে নতুন আইনক আৰু অসমত ইউসিসি বলবৎ কৰাৰো জোৰজা চলিছে অসমত এই নতুন আইন বলবৎ হলে কি পৰিৱৰ্তন হ'ব আমি জনাম যে মুছলমান সমাজত হ'ব বৃহৎ পৰিৱৰ্তন এটা ডাঙৰ খবৰ হালাল তালাক ইদ্দাত হ'ব নিষিদ্ধ ইউসিসি হলে হ'বলগীয়া 10টা বিশেষ পৰিৱৰ্তন আমি এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো সকলো ধৰ্মৰ ছোৱালীৰ বিবাহ 21 বছৰ হ'ব লাগিব বিবাহ বিচ্ছেদৰ সমান অধিকাৰ থাকিব পুৰুষ আৰু মহিলাৰ লিভ ইন ৰিলেশ্যনত থাকিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব লাগিব এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লিভ ইনৰ পঞ্জীয়ন নকৰিলে হ'ব 6 মাহ জেল লিভ ইনত জন্ম হোৱা সন্তানেও সম অধিকাৰ লাভ কৰিব ইউসিসি আইনৰ আধাৰত বহু বিবাহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হ'ব পতি বা পত্নী জীয়াই থাকিলে দ্বিতীয় বিবাহ পাতিব নোৱাৰিব বিবাহৰ পঞ্জীয়ন সকলোৰে বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব শৰীয়ত আইন মতে বিবাহ নহব এতিয়াৰ পৰা মুছলমান লোকৰ বন্ধ হ'ব 3 তালাক এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে সকলোৱে কৰিব লাগিব বিবাহ বিচ্ছেদ উত্তৰাখণ্ডৰ পাছত অসমতো শীঘ্ৰে বলবৎ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আমি উল্লেখ কৰিছো ইতিমধ্যে যে উত্তৰাখণ্ডত ইতিমধ্যে বলবৎ হৈছে ইউসিসি অহাৰ পিছতে এতিয়া কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আমি সেই কথা উল্লেখ কৰিছো আৰু এনেদৰে উত্তৰাখণ্ডত বিধানসভাত ইউসিসি বলবৎ হোৱাৰ পিছতে গৃহীত হোৱাৰ পিছতে এনেদৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে নাচে গানে স্বাগতম জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নতুন আইন আৰু নতুন আইনক লৈ এনেদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এতিয়া বিজেপি কৰ্মী আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো অসমত ইউসিসি বলবৎ কৰাৰো যুঁজা চলোৱা হৈছে লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে অসমত এই নতুন আইন বলবৎ হলে কি বিশেষ পৰিৱৰ্তন হ'ব আমি সেই তথ্য সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো মুছলমান সমাজত হ'ব বৃহৎ পৰিৱৰ্তন এটা ডাঙৰ খবৰ হালাল তালাক ইদ্দাত ইত্যাদিবোৰ নিষিদ্ধ হ'ব মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ইউসিসি হলে হ'বলগীয়া 10টা বিশেষ পৰিৱৰ্তন আমি এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো 10টা বিশেষ পৰিৱৰ্তন সকলো ধৰ্মৰ ছোৱালীৰ বিবাহ 21 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব তেতিয়া সেই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব পাৰিব বিবাহ বিচ্ছেদৰ সমান অধিকাৰ থাকিব পুৰুষ আৰু মহিলাৰ দুয়োগৰাকীয়ে সম অধিকাৰ লাভ কৰিব উত্তৰাখণ্ডত ইতিমধ্যে যেহেতু বলবৎ হৈছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড এটা ডাঙৰ খবৰ জনাৰ চেষ্টা কৰিছো ইউসিসি বলবৎ কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্য হৈছে উত্তৰাখণ্ড আৰু এতিয়াৰ পৰা কেইবাটাও নিয়ম হলনি হ'ব আৰু নিজ ইচ্ছামতে যেতিয়াই মন যায় যিহকেই আপুনি কৰিম বুলি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলেও কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো এতিয়া আইন বলবৎ হৈছে এই আইনৰ আওতাত আহিব বা আইনৰ অধীনতে আপুনি কাম কৰিব পাৰিব এই কথা উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নতুন আইনক এনেদৰে বিজেপি কৰ্মীয়ে নাচে গানে স্বাগতম জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নতুন আইনক আঁকোৱালি লৈছে এইসকল বিজেপি কৰ্মীয়ে উত্তৰাখণ্ডত আৰু এই মুহূৰ্তত উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে ইউসিসি বলবৎ কৰা গৃহীত কৰাৰ পিছতেই কি মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মেলযোগে আমি সেই মন্তব্য শুনাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম विधानसभा के सभी सदस्यों का सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही उनके आशीर्वाद से ही उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है जो विधेयक है उसको हम पारित कर पाए इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे उन्होंने भी
जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। और लगभग 2 वर्षों के इस कालखंड में लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया। और जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। আৰু এয়া আছিল উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ মন্তব্য। আৰু যিহেতু উত্তৰাখণ্ড বিধানসভাত এই বিধেয়কখন উপস্থাপন কৰা হ'ল বা গৃহীত হ'ল ইতিমধ্যে আৰু আইনলৈ পৰিণত হৈছে আৰু তাৰ পিছত এনেদৰে কেইবাটাও নিয়ম সলনি হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেইবাটাও নিয়ম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। UCC হ'লে হ'বলগীয়া 10টা বিশেষ পৰিৱৰ্তনৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। সকলো ধৰ্মৰ ছোৱালীৰ বিবাহ 21 বছৰ হ'ব লাগিব বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। সমান্তৰালকৈ বিবাহ বিচ্ছেদৰ সমান অধিকাৰ থাকিব এতিয়াৰ পৰা পুৰুষ আৰু মহিলাৰ। আৰু উত্তৰাখণ্ডত এনেদৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে ঢোলে ডগৰে নাচে গানে আদৰণি জনাইছে নতুন আইনক, অৰ্থাৎ নতুন আইন আহিলত তেখেতসকল সুখী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে উত্তৰাখণ্ডত বলবৎ হৈছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড। UCC বলবৎ কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্য হৈছে, দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হ'ল এতিয়া উত্তৰাখণ্ড। উত্তৰাখণ্ডৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যটো অসমতো UCC আনিবৰ বাবে যুঁজা চলাইছে, ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু মুছলমান সমাজত হ'ব বৃহৎ পৰিৱৰ্তন, হালাল, তালাক, ইদ্দাত হ'ব নিষিদ্ধ। UCC হ'লে আহিলে 10টা বিশেষ পৰিৱৰ্তন হ'ব, য'ত লিভ ইন ৰিলেশ্যনত থাকিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব লাগিব, লিভ ইনৰ পঞ্জীয়ন নকৰিলে হ'ব 6 মাহ পৰ্যন্ত জেল। আৰু লিভ ইনত জন্ম হোৱা সন্তানেও সম অধিকাৰ পাব বুলি জানিব পৰা গৈছে, জনাইছে এই কথা নিয়ম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। UCC আইনৰ আধাৰত বহু বিবাহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হ'ব। পত্নী বা পত্নী জীয়াই থাকিলে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিব নোৱাৰিব, এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। বিবাহ পঞ্জীয়ন সকলোৰে বাবে বাধ্যতামূলক হৈ পৰিব আৰু যদিহে পঞ্জীয়ন নকৰে চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে উত্তৰাখণ্ডত এই
আইন গৃহীত কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতি মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যেতিয়াই স্বাক্ষৰ কৰিব তেতিয়াই এইখন আইনত পৰিণত হ'ব আৰু কাৰ্যকৰী হ'ব উত্তৰাখণ্ডত। উত্তৰাখণ্ডৰ পিছতেই এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজ্যসমূহতেই UCC বলবৎ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ পিছতেই অসমতো হয়তো অসম দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হ'ব UCC বলবৎ কৰা আৰু অসম চলিত বিধানসভাত এই বিধেয়কখন উপস্থাপন কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত শাসকীয় দলৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে এই কথা উল্লেখ কৰি আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আমি উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ সেই বিশেষ ভাষ্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বিধানসভাত উত্তৰাখণ্ডৰ বিধানসভাত এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰা হ'ল আৰু তাৰ পিছতেই কেনেদৰে এতিয়া কাম কৰিব, কি কি নিয়ম সলনি হ'ব সেই কথা তেখেতে স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰবাৰ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই বিশেষ ভাষ্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है और लगभग 2 वर्षों के इस कालखंड में लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया और जो ड्राफ्ट बनाया उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से
धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे।